So this is hip bone or innominate bone. Why it is called as innominate bone? In different anatomical congress, name of this bone has not been decided unanimously because as per the situation, it is named as hip bone. As per the location, जैसे हम बोलते हैं शोलापुरे, बीटकर, नांदेड़कर, काइंड ऑफ ये hip bone as per the location. But in different anatomical congress, certain anatomies refer for some other name, some other anatomies don't agree with that. जैसे कैसा होता है कि एक आधे बच्चे का नाना ने कुछ अलग नाम दिया है, पापा ने कुछ अलग, मम्मी ने कुछ अलग, स्कूल में जाके झगड़ा लग गया किसका नाम रखना, तो फिर मामा ने नाम लिखा दिया अनामिका, तो ये वन का नाम है अनामिका. अगर हम हिंदी में संस्कृत में बोलेंगे तो दिस बोन इज नेम्ड एज अनामिका एंड इंग्लिश में इनोमिनेट एंड एज पर लोकेशन हिप बोन. इट इज मेड अप ऑफ थ्री बोन, ilium, Ischium and pubis. Now how to hold this bone in anatomical position? There are total 10 points you have to remember. What are the 10 points? So what are the 10 points? First of all, as per our basic conception, we should know 6 directions: superior, inferior, anterior, And then posterior, medial, lateral. and whichever thing is laterally determines side of the bone. That is the common basic principle for any bone, any organ. First, expanded fan shape iliac crest is superiorly. Expanded fan shape iliac crest. If you see the exhaust fan, you will see the single blade of that exhaust fan is like this shape. Expanded fan shape iliac crest is superiorly. Obturator foramen is inferiorly. Inferiorly. Some part of the world it may be pronounced as obturator and some part obturator. Obturator foramen inferiorly. Anterior superior iliac spine. Today morning while McBurney's point you see anterior superior iliac spine. This anterior superior iliac spine is anteriorly. Greater sciatic notch Posteriorly. Symphysis pubis medially. Medially. Acetabulum Laterally. and determines side of the bone. But even after that, if I hold it like this, it's not in anatomical position. If I hold it like this, it is not anatomical position. This not anatomical position. So there must be some finer angular adjustment. For that, we have to remember some other points. First thing, this should be in same vertical plane. These 2 points, anterior superior iliac spine and pubic tubercle. This is anterior superior iliac spine and this is pubic tubercle. Should be in same vertical. This is horizontal plane. This is vertical plane. These 2 points should be in same vertical plane. Then this iliac tubercle and acetabular notch. This cup shaped area is acetabulum and cup टूटा हुआ है एक जगह पे. That is acetabular notch. Border पे depression रहता तो notch बोलते. So this acetabular notch and this iliac tubercle should be in same vertical line. इसके लिए मैंने बोला vertical plane but not in vertical line. देखो oblique हो जा रहा, but in same vertical plane. These 2 points, anterior superior iliac spine, pubic tubercle in same vertical plane. But iliac tubercle and acetabular notch in same vertical line. इसके बाद भी और एक चीज ध्यान में रखना पड़ता है. Symphysis pubis should lie on median plane.
The symphysis pubis should lie on median plane. Now repeat after me. What are the 10 points? First thing, expanded ilium superiorly, Superiorly. obturated The foramen foramen inferiorly. anterior superior spine, Spine. and pubic tuberculum में से Anteriorly. anteriorly, greater sciatic notch, Posteriorly. lesser sciatic notch, greater sciatic notch Posteriorly. symphysis pubis Medially. Acetabulum laterally. Laterally. determines side of the Bone. Then final adjustment, anterosuperior spine and pubic tubercle, Same same vertical plane. Iliac tubercle and acetabular notch, same vertical line. Symphysis pubis is on Median wall. So this is or these are the points to be remembered for anatomical position of hip bone. अब मेरे जैसे बच्चों का दिमाग चकरा रहा है, ये इतने सारे क्या बड़बड़ा दिए, है ना? तो शॉर्ट में कैसे याद रखना है? शॉर्ट में ऐसे याद रखना है, हाथ को ऐसा करना है, यहाँ पे एक नॉच दिखेगा, ये नॉच ग्रेटर साइटिक नॉच में घुस जाना है, पम एसिटाबुलम को कवर करना है, करके ये मीडियन प्लेन पे तुम्हारे शर्ट के बटन या जैकेट के चेन ये लेवल पे आएगा symphysis pubis. Pubis. So this is anatomical position. In short, जिसको इतना सारा याद नहीं रह रहा, चकरा रहा है, उनके लिए ये 10 पॉइंट छोड़ के ये 1 पॉइंट, क्या ये इसमें फिट होगा, इसको ढकना है अपने पंप से, और ये मिड लाइन पे आएगा. अब अगर गलत हाथ में मैं पकड़ा तो ये सेट ही नहीं होगा, सेट होके ये मेरा पंप इसको कवर ही नहीं कर पाएगा. अगर गलती से मैंने सेट भी कर लिया तो मेरा पंप कहाँ एसिटाबुलम पे आ रहा है, मेरा पंप दूसरे साइड में जा रहा है. ठीक है, हो गया एनाटॉमिकल पोजीशन. उसके बाद आते हैं हम एक एक करके पार्ट देखेंगे. फर्स्ट पार्ट क्या है हमारा? Ilium. Ilium has got certain borders and certain surfaces as anything, any bone, any organ. तो इलियम का भी ऐसा है. तो इलियम कहाँ पे सेपरेटेड हुआ है? यहाँ पे इलियम, यहाँ तक इलियम है. ये एसिटाबुलम के अंदर अगर हम देखेंगे तो ये जो मैंने एक मर्सिडीज का सिंबल बना दिया, तो इसके ऊपर ये जो पार्ट है इतना सा 2/5 इज इन इलियम. ये एसिटाबुलम के इतना सा पार्ट इज इन इलियम. ओके, नाउ कमिंग टू द बॉर्डर. द फर्स्ट बॉर्डर इज iliac crest, superior border extending from anterior superior iliac spine to posterior superior iliac spine. Superior border anterior superior iliac spine to posterior superior iliac spine, and broadly it is called as iliac Iliac crest. crest. Now coming to the description of the superior border or iliac crest. This iliac crest is again divided into two parts. If we see it like this, ऐसा अगर देखेंगे तो we'll see this is sigmoid. S के जैसा दिख रहा है. Anterior 2/3 is convex outside. Posterior 1/3 is concave outside. Anterior 2/3 convex Outside. Posterior 1/3 Concave outside. That is why it is sigmoid. Okay. Anterior 2/3 receives the muscles of anterior abdominal wall, and posterior 1/3 receives the muscle of Posterior abdominal wall. के muscles. Now, anterior 2/3 has got two lip, outer lip and Inner lip. But posterior 1/3 has got outer sloping surface and inner sloping surface. So we should read it in two parts, anterior 2/3 and Posterior one.
differences are anterior 2/3 convex outside, posterior 1/3 concave outside, anterior 2/3 have outer lip, inner lip, posterior 1/3 have outer sloping Sloping surface and inner sloping surface. Anterior 2/3 receives attachment of Anterior abdominal wall anterior muscles. abdominal wall muscles. Posterior 1/3 receives attachment for Posterior abdominal wall muscles. So that is why we should read it separately. So coming to the anterior 2/3. Outer lip, inner lip, crossly, inner lip gives attachment to the inner muscles such as internal oblique. At the midline there will be external oblique and outside transversus abdominis and posterior यहाँ पे sloping surface जो है outer sloping inner sloping here there will what are the muscles psoas major quadratus lumborum transversus abdominis. Now see transversus abdominis is both is in anterior abdominal and posterior abdominal muscles. So it is both in anterior 2/3 continuous to the Posterior 1/3. Okay. Now coming to the anterior border. Anterior border begins from anterior superior iliac spine, then there is a small notch, then anterior inferior iliac spine, then again a small notch and ends at acetabular margin. Begins at anterior superior iliac spine, then there is a small notch, then anterior inferior iliac spine, then there is a small notch and ends at acetabular margin. Margins. Whereas posterior border begins at posterior superior iliac spine, a small notch, posterior inferior iliac spine, greater sciatic notch and continues with the border of ischium. Ischium. Okay. Then there is a border which is called as intermediate border. This intermediate border starts at the level where anterior there is junction between anterior 2/3 of iliac crest and Posterior 1/3 of iliac crest. ये जो इसके बीच में जो जंक्शन है वहां से शुरू हुआ and it separates a smooth anterior 2/3 and rough Posterior 1/3. The smooth anterior 2/3 is convex. Sorry, Concave. Smooth anterior 2/3 is concave, Concave. and that is called as iliac fossa. Pencil से जितना सा एरिया मैंने मार्क किया, this part you may draw it in red. Origin of iliacus muscle. muscles. Origin of Iliacus muscle. from this whole area, iliacus muscle. So that is why it is called as Iliac fossa. iliac fossa. This is ilium bone. इलियम बोन का फोसा, सो इलियम का एडजेक्टिव इलियाक फोसा. अब इलियाक फोसा से जो मसल ओरिजिन होता है उसका नाम हो गया इलियाकस. जैसे स्कैपुला में हमने देखे थे तो सुप्रास्पाइनस फोसा से जो ओरिजिन होता है सुप्रास्पाइनेटस. इंफ्रास्पाइनस फोसा से जो Infraspinatus. वैसे इलियाक फोसा से जो ओरिजिन हो रहा है उसका नाम इलियाकस. Got it? Now इंटरमीडिएट बॉर्डर इसके पीछे. इंटरमीडिएट बॉर्डर कहाँ, यहाँ से तो शुरू हुआ, कहाँ तक, इसके बाद कहाँ तक कंटिन्यू होता. देयर इज अ इलियोप्यूबिक एमिनेंस. दिस एमिनेंस इज कॉल्ड एज Iliopubic eminence. एंड अल्टीमेटली गोइंग टुवर्ड्स प्यूबिस. तो इसके पीछे का 1/3 यहाँ पे क्या है, 3 एरिया है. 3 एरियाज आर देयर. ये जो एरिया दिख रहा है दिस सेज ऑसियस एरिया. यहाँ पे बोनी अटैचमेंट होता है. बोन कौन सा, सैक्रम, ऑरिकल ऑफ द सैक्रम. ये यहाँ पे ऑरिकुलर सरफेस भी बोलते, यहाँ पे आके अटैच हो रहा है. सैक्रम का जो एकदम ऊपर का डायलेटेड पार्ट है वो आके यहाँ पे मोस्ट जिसका विड्थ सबसे ज्यादा है, सैक्रम का जो पार्ट का विड्थ सबसे ज्यादा है वो पार्ट आके यहाँ पे एक साइड यहाँ पे और दूसरे साइड दूसरे हिप बोन में जाके अटैच होता है.
तो दिस इज ऑसियस एरिया। ऑसियस एरिया के ऊपर ये जो एरिया है मिडिल जोन है, दिस मिडिल जोन इज कॉल्ड एज लिगामेंटस एरिया। तो यहाँ पे क्या है, सैक्रोइलियक लिगामेंट और सैक्रोट्यूबरस लिगामेंट, ये एरिया को ट्यूबरकल भी बोलते हैं। सैक्रोइलियक और सैक्रोट्यूबरस लिगामेंट रहता है जो सैक्रम और इलियम को बांध के रखता है। सैक्रोइलियक iliac tubercle लिगामेंट। तो सबसे नीचे है ऑसियस अटैचमेंट, देन लिगामेंटस अटैचमेंट, और इसके ऊपर तो हो गया इनर स्लोपिंग सरफेस। यहाँ से क्या होता है, सोअस मेजर, तो मस्कुलर, हाँ लैटिस मस्टोस। तो ये एरिया कैसा होगा, मस्कुलर। सो मस्कुलर, लिगामेंटस एंड ऑसियस। अभी ये हो गया अपना इलियम। इलियम के बाद हम आते हैं इस्चियम में। इस्चियम स्टार्ट्स विद द कंटिन्यूएशन ऑफ दिस बॉर्डर, Greater sciatic. posterior border of the ilium, greater sciatic notch which continues at ischium। यहाँ से ischium शुरू हो गया समझो बीच रास्ते में। कभी कभी ऐसा होता है, क्लियरली समझता नहीं, लेकिन एक एरिया खत्म हो जाता है, दूसरा एरिया शुरू हो जाता है। अगर हम नॉर्थ ईस्ट में गए तो मैंने बहुत बार देखा, मैं पैदल क्रॉस कर गया, कोई गोली बारूद नहीं, कुछ नहीं। दार्जिलिंग से भूटान जा सकते हैं, दार्जिलिंग मतलब वो एरिया से नेपाल जा सकते, कुछ नहीं, रास्ते से स्मूथली चले जाते हैं, कोई वीसा वीसा कुछ नहीं। तो ये यहाँ पे वैसे ही हम स्मूथली एंटर कर गए इस्चियम, एंड अल्टीमेटली दिस इज इस्चियल स्पाइन, एंड आफ्टर इस्चियल स्पाइन देयर इज लेसर साइटिक नॉच। अभी लेसर साइटिक नॉच के बाद यहाँ पे एक बड़ा सा एरिया आता है which is very important regarding muscles, that is called as ischial tuberosity. This ischial tuberosity is again divided into 4 areas. First of all, it is divided into 2 areas, upper quadrangular and lower triangular. Upper quadrangular area is again divided into 2 triangular area. Upper quadrangular, समझो यहाँ से एक लाइन खींचे तो ये एक अपर क्वाड्रेंगुलर एरिया एंड अ लोअर ट्रायंगुलर एरिया। दिस अपर क्वाड्रेंगुलर एरिया इज अगेन डिवाइडेड इनटू टू ट्रायंगल। One is for semi-membranosus and one is for semi-tendinosus. Both of these are, hamstring तो है ही, मीडियल रोटेटर भी है। हैमस्ट्रिंग क्या करता है, हैमस्ट्रिंग ये मूवमेंट कराता है। इन शॉर्ट, दिस इज द मूवमेंट और हैमस्ट्रिंग, दैट इज एक्सटेंशन ऑफ हिप जॉइंट एंड फ्लेक्शन ऑफ नी जॉइंट। लेकिन उसमें सेमी मेम्ब्रेनोसस एंड सेमी टेंडोनोसस एडिशनल मूवमेंट क्या कराता है, मीडियल रोटेशन। और इसके नीचे इधर है बाइसेप्स फेमोरिस एंड एडक्टर मैग्नस। अब एडक्टर मैग्नस का फाइबर यहाँ से शुरू होता है, ischial tuberosity से शुरू होता है, which is called as ischial fiber. Then इसका फाइबर यहाँ पे कंटिन्यू होता है, which is called as ramus fiber. And इसका फाइबर यहाँ पे आता है, that is called as pubic fiber. ये जो ischial फाइबर है, ये ischial फाइबर यहाँ पे आके इंसर्ट हो जाता है। जो रैमस के फाइबर है वो ये लीनिया एस्पेरा पे इंसर्ट होता है, और ये जो प्यूबिक फाइबर ऊपर अटैच होता है, इधर लीनिया एस्पेरा में हो रहा है रैमस के फाइबर, एंड जो ischial फाइबर है वो इधर आके एडक्टर ट्यूबरकल जो है, एडक्टर ट्यूबरकल के आके इंसर्ट होता है। तो इंसर्ट होने का पॉइंट भी बहुत लंबा है, मतलब ये एडक्टर ट्यूबरकल से लेके तो ये यहाँ तक पूरा लीनिया, पूरा सुप्रा कॉन्डाइलर लाइन, लीनिया एस्पेरा, यहाँ पे मीडियल कॉन्डाइल और यहाँ तक, ये टोटल लाइन में इंसर्ट हो रहा है और शुरू हो रहा है ischial tuberosity ramus होके pubis तक। That is why this muscle is named as magnus। ठीक है, एडक्टर मैग्नस।
मैग्नस मतलब बड़ा है, तो इसका ओरिजिन भी बहुत बड़ा है और इंसर्शन भी बहुत बड़ा है। ठीक है। लेकिन इसमें से कौन से फाइबर्स हैमस्ट्रिंग के अंदर लेंगे हम? जो फाइबर सिर्फ ischial ट्यूबरसिटी से ओरिजिन हुआ और ये एडक्टर ट्यूबरकल में इंसर्ट हो रहा है, क्योंकि इस हैमस्ट्रिंग मसल का प्रॉपर्टी क्या है? फ्लेक्सर ऑफ नी जॉइंट, एक्सटेंसर ऑफ हिप जॉइंट होना, ischial ट्यूबरसिटी से ओरिजिन होना, एक्सटेंसर ऑफ हिप जॉइंट एंड फ्लेक्सर ऑफ नी जॉइंट होना। तो यहाँ पे नी जॉइंट को नहीं कर सकता, एटलीस्ट यहाँ तक तो भी आ रहा है। जो यहाँ पे खत्म हो जा रहा है तो नी जॉइंट में कोई रोल ही नहीं रहेगा। तो ये हो गया ischial ट्यूबरसिटी से 4 हैमस्ट्रिंग मसल, दैट इज सेमी मेम्ब्रेनोसस, सेमी टेंडिनोसस, बाइसेप्स फेमोरिस एंड एडक्टर मैग्नस। अब ये जो बाकी दो है, ये क्वाड्रेंगुलर एरिया हो गया। जो नीचे के जो ट्रायंगुलर एरिया से, दे आर लैटरल रोटेटर, और ऊपर के जो दो है, दे आर मीडियल रोटेटर। तो एक्सटेंशन फ्लेक्शन करने के साथ साथ आधे मसल मीडियल रोटेटर कर और आधे मसल लैटरल रोटेटर। ये सब के नर्व सप्लाई भी पोस्टीरियर डिवीजन ऑफ साइटिक नर्व। इसलिए कभी कभी स्पोर्ट्स में जब हम थक जाते हैं, सोडियम निकल जाता है, तो ये कौन सा मीडियल रोटेट करना, लैटरल रोटेट करना, जब हम रन लेने के बाद वापस यू टर्न लेके घूमते हैं, या लॉन टेनिस में एक साइड में कोर्ट में खेलने के बाद वापस यू टर्न लेके, तो ऐसे टाइम पे क्या होता है? देयर इज हैमस्ट्रिंग पुल, ठीक है, विच इज अ सर्जिकल या फिर मेडिकल इमरजेंसी। नाउ उसके बाद हम आते हैं यहाँ पे, ये हमने देखे थे ये इलियाकस, इलियाक फोसा का। यहाँ पे एक मसल हमने देखे थे सोअस मेजर। ये जो लाइन है यहाँ पे सामने, ये जो लाइन है यहाँ से ओरिजिन होता है पेक्टिनियस, और यहाँ पे है एडक्टर लॉन्गस। तो 4 मसल देखो, अभी मैं बोल रहा हूँ, एडक्टर लॉन्गस, पेक्टिनियस, इलियाकस एंड सोअस मेजर। ये 4 जो मसल है, ये 4 मसल यहाँ से थाई में आ जाता है। और ऊपर क्या है? इंग्विनल लिगामेंट। इंग्विनल लिगामेंट कौन से लेवल पे है? पैर को ऐसा फोल्ड करो, यहाँ पे जो फोल्ड आया वो लेवल पे रहता है इंग्विनल लिगामेंट। इंग्विनल लिगामेंट के नीचे से 4 मसल थाई पे आ जाता है। ये जो 4 मसल थाई पे आ गया, ऑलमोस्ट लाइक समझो ऊपर से एक फ्लाईओवर चला गया और नीचे से 4 लेन रोड है। ये 4 लेन रोड से एक वैन जा रहा है। वो वैन क्या है? वेन आर्टरी नर्व, ठीक है। ये 4 मसल आ गया थाई में, जो कि which will form floor of femoral triangle। वो 4 मसल के ऊपर 3 स्ट्रक्चर रहता है वैन, दैट इज वेन आर्टरी नर्व, femoral vein, femoral artery, femoral nerve। ऊपर ये क्या है? इंग्विनल लिगामेंट। इंग्विनल लिगामेंट से शुरू हो जाता है femoral triangle। इसके फ्लोर में है क्या क्या बोला मैंने? एडक्टर लॉन्गस, पेक्टिनियस, इलियाकस, सोअस मेजर। ये 4 मसल थाई में आ गया, मेकिंग फ्लोर ऑफ द femoral triangle। और इसके गोदी में, इसके ऊपर जस्ट इसके रेस्ट में, जैसे स्टमक बेड कुछ स्ट्रक्चर के ऊपर रहता है, वहाँ पे यहाँ पे 3 जो femoral नर्व, वेन, आर्टरी नर्व, ये 4 मसल के ऊपर रेस्ट करता है। रेस्ट करके थाई के अंदर एंटर करता है। थाई के अंदर कौन से एरिया में एंटर कर रहा है? विद इन femoral triangle, जो हम बाद में देखेंगे, ठीक है। फिर और बहुत सारे छोटे छोटे मसल्स के यहाँ पे ओरिजिन वगैरह होता है। अभी देखो बड़े मसल्स जो रहेगा पीछे इधर रहता है ग्लूटियस मैक्सिमस, मीडियस एंड मिनिमस। अब ग्लूटियस मैक्सिमस जो है वो बहुत छोटा सा एरिया से ओरिजिन होता है। ये जो यहाँ से अगर मैंने लाइन ड्रॉ किया, ये एक लाइन ड्रॉ किया, तो इसके बाहर का जो एरिया है यहाँ से ओरिजिन हो रहा है ग्लूटियस मैक्सिमस।
इतने से एरिया से ओरिजिन हो रहा है ग्लूटियस मीडियस। और ये छोटा सा, मिनिमस, ये छोटा नहीं, ये भी बड़ा है, यहाँ से ओरिजिन होता है ग्लूटियस मिनिमस। मिनिमस। तो अपेरेंटली ये तो बहुत बारीक एरिया से ओरिजिन हो रहा है, तो इसका नाम मैक्सिमस क्यों है? देखो कंपेयर करेंगे तो ये तो सबसे बारीक है ना, उससे तो ये दो साइज में बड़ा दिख रहा है, तो इसको मैक्सिमस इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये तो अंदर रहता है, इतना सा ही है। इसके ऊपर मीडियस रहता है, तो ये साइज में उससे थोड़ा बड़ा होगा, और ये मीडियस के ऊपर रहता है मैक्सिमस। तो मैक्सिमस साइज में सबसे बड़ा है। हो गया। अगर इंसर्शन भी देखेंगे, मैक्सिमस का इंसर्शन सबसे नीचे, मतलब ये सबसे ऊपर से शुरू होके ये मीडियस और मिनिमस को कवर करके ये सबसे नीचे आके इंसर्ट हो रहा है, तो दैट इज मैक्सिमस उसका नाम है, क्योंकि साइज में बड़ा है। अपेरेंटली हम अगर एरिया ऑफ ओरिजिन देखेंगे तो इसका एरिया कम है, बट साइज में वो मसल सबसे बड़ा है। अगर हमको एमसीक्यू आता है, स्ट्रॉन्गेस्ट मसल ग्लूटियस मैक्सिमस, स्ट्रॉन्गेस्ट एंटी ग्रेविटी मसल अगेन ग्लूटियस मैक्सिमस, मोस्ट वॉल्यूमनस मसल, सबसे वॉल्यूम के हिसाब से बड़ा कौन है? ऑलरेडी हमको मालूम है, लेंथ के हिसाब से सर्टोरियस एंड एरिया के हिसाब से ट्रेपेजियस, लेकिन वॉल्यूम के हिसाब से सबसे बड़ा कौन है? ग्लूटियस मैक्सिमस। ओके, तो ये हो गया इधर के तीन मसल। ये छोड़ के छोटे छोटे कुछ मसल है, जैसे यहाँ पे दो मसल है, गैमेलस सुपीरियर, गैमेलस इंफीरियर। यहाँ पे ये ऑब्टूरेटर फोरामेन है, इस ये ऑब्टूरेटर फोरामेन बनता है रेदर। ऑब्टूरेटर फोरामेन बहुत ही छोटा है, जो ओरिजिनल ऑब्टूरेटर फोरामेन है। ये जो ऑसियस फोरामेन है ये बड़ा है, लेकिन एक्चुअल ऑब्टूरेटर फोरामेन का साइज इसका 1/5 है। ये जो साइज देख रहे हो इसका ओनली 1/5 है। तो बाकी एरिया ढकता कौन है? बाहर से ढकता है ऑब्टूरेटर एक्सटर्नस, और अंदर से ढकता है ऑब्टूरेटर इंटरनस। तो ऑब्टूरेटर एक्सटर्नस और ऑब्टूरेटर इंटरनस, ये मसल हो गया। अभी यहाँ पे रहता है गैमेलस सुपीरियर एंड गैमेलस इंफीरियर। सम पार्ट ऑफ द वर्ड इट इज प्रोनाउंस्ड एज गैमेलस सुपीरियर एंड गैमेलस इंफीरियर, जी से, ठीक है। तो व्हाटएवर यू प्रोनाउंस, गैमेलस सुपीरियर एंड गैमेलस इंफीरियर यहाँ से है। ये जो यहाँ पे ग्रेटर सायाटिक नॉच है, यहाँ से निकल के आता है सायाटिक नर्व, लेकिन ये ग्रेटर सायाटिक नॉच को सायाटिक फोरामेन में कन्वर्ट करता है, इवन लेसर सायाटिक नॉच को भी। यहाँ पे एक मसल रहता है दैट इज कॉल्ड एज पायरिफॉर्मिस, पायरिफॉर्मिस। तो ये सारे मसल्स है ग्लूटियल रीजन में। और साइड बाय साइड ये हिप बोन के मसल अटैचमेंट भी हो गया। अच्छा, यहाँ से तीन स्ट्रक्चर पास होता है, जैसे ऑब्टूरेटर एक्सटर्नस और इंटरनस। क्या किया, ये फोरामेन को थोड़ा छोटा कर दिया। छोटा करने के बाद यहाँ से क्या पास होता है? यहाँ से स्ट्रक्चर पास होता है ऑब्टूरेटर आर्टरी, ऑब्टूरेटर वेन, ऑब्टूरेटर नर्व। ऑब्टूरेटर नर्व ये किसको सप्लाई करता है? एडक्टर ग्रुप ऑफ मसल, जो मसल इधर है मीडियल कंपार्टमेंट में, ठीक है। जैसे कि एडक्टर मैग्नस के बाकी फाइबर, देन एडक्टर लॉन्गस, ग्रासिलिस, हाँ, एडक्टर ब्रेविस, ये सारे मसल को सप्लाई करता है ऑब्टूरेटर नर्व। आर्टरी भी, ऑब्टूरेटर आर्टरी, वेनस ड्रेनेज, ऑब्टूरेटर वेन। आणि सामने के एंटीरियर कंपार्टमेंट को कौन सप्लाई करता है? femoral artery, femoral vein, femoral nerve। एंड पीछे को सप्लाई कौन करता है? साइटिक नर्व, पोस्टीरियर कंपार्टमेंट। तो यहाँ पे तीन कंपार्टमेंट में अलग अलग मसल है। एडक्टर कंपार्टमेंट को ऑब्टूरेटर नर्व, एंटीरियर कंपार्टमेंट को femoral nerve, पोस्टीरियर sciatic nerve। ठीक है, दैट्स इट। देखो